Hello my dear lovely students, welcome back to our today's EVS class. Now students, in our today's EVS class we are going to start our social studies lesson. बच्चों, आज से हमारे EVS की क्लास में हम social studies के lesson start करेंगे. Understood? Today we will start our first lesson. What is the name of the first chapter? Political divisions of India. What is the name? Political divisions of India. Now in this lesson we will see the political divisions of India. So come, let's start. India is a vast country. Area wise it ranks 7th in the world. Its east to west extension from Gujarat in west to the Arunachal Pradesh in the east is 3000 kilometer. Now, as all of us know that India is a vast country. Vast country means India is a huge, big country. In area wise also. Area wise it ranks 7th. Area wise में इंडिया का रैंक कितने पे आता है? 7 नंबर पे इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे विश्व में इंडिया का रैंक कौन से नंबर पे है? 7th पोजीशन पे है. इट्स ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन, मतलब इंडिया के ईस्ट से लेके वेस्ट का जितना भी एक्सटेंशन है फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू द अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट इज 3000 किलोमीटर्स. कितना है? 3000 किलोमीटर्स. ठीक है. नाउ वी विल सी पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल डिवीजन? द एंटायर नेशन एंड इट्स पॉपुलेशन of over 125 crore people is looked after by the central government or the union government. Now the entire Indian nation is population is over 125 crore. मतलब क्या population है इंडिया की? 125 crore people, so many people. Now this people is looked after. Looked after means the person who is looking after this people, मतलब जो इन लोगों का ध्यान रखते. किन लोगों का? 125 करोड़ लोगों का. वो है सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट. अंडरस्टूड? बट इट इज़ नॉट ईजी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द होल कंट्री all by itself. So India has been divided into small parts called states and union territories. Now as all of us know that to run the whole country is not simple or easy. पूरे country को चलाना एकदम simple और easy बिल्कुल भी नहीं है. So it is divided into small parts. पूरा एक कंट्री कैसे डिवाइडेड है? स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड है. और वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को क्या बोलेंगे? वी विल से दो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. व्हाट वी विल कॉल? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. इन इंडिया वी हैव 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. नाउ इन इंडिया एज यू कैन सी इन द मैप, आप मैप में देख सकते हो हाउ मेनी स्टेट्स वी हैव. We have total 29 states and 7 union territories. We have 7 union territories and 29 states. That includes the National Capital Territory of Delhi. Each state has a capital city and is ruled by its own state government. Now each state means हर state का एक capital city होता है जो कि रूल किया जाता है उनके खुद के स्टेट गवर्नमेंट से. हर स्टेट में फॉर एग्जांपल एज यू कैन से महाराष्ट्र स्टेट इज गवर्न बाय महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट इज गवर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट. विच स्टेट गवर्नमेंट? महाराष्ट्र? नो, ओनली छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट. जो स्टेट का गवर्नमेंट है वो ही गवर्नमेंट वो स्टेट को रन करेगी, ऑपरेट करेगी. छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट महाराष्ट्र को ऑपरेट नहीं करेगी, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ की
गवर्नमेंट को ऑपरेट नहीं करेगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सिर्फ महाराष्ट्र को ही देखेगी और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ को ही देखेगी। दे विल रूल्ड बाय देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट, वो अपने ही गवर्नमेंट से रूल करेंगे ना। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया एंड लाइज इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। The central government works from New Delhi. The President of India is a titular head. The Prime Minister and his Council of Ministers at the central government look after the safety and welfare of people. Now, as you know, the capital of India is which? Yes, Delhi. Where is Delhi? Here. Delhi is the capital of India. I may ask this question in oral exam. Say the capital of India. The capital of India is Delhi, right? It is located in the North India, lies in the National Capital Territory of Delhi. Where it is located? In North India. Delhi कहाँ located है? North India में। ये area को बोलते हैं North India area. Lies in the National Capital Territory of Delhi. National Capital Territory में वो lie करता है। The central government works from New Delhi. Now central government, हमारा इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहाँ से वर्क करता है? न्यू दिल्ली से वर्क करता है। The President of India is a titular head. The Prime Minister and his Council of Ministers at the central government look after the safety and welfare of the people. Now Council of Ministers at the central government. Central government में जो ministers होते हैं वो क्या देखते हैं? They look the safety and welfare of the people. वो लोगों का safety, security और welfare भलाई देखते हैं। कौन? Council of Ministers. Council में जो ministers बैठते हैं ना वो यही काम करते हैं। Now we will see how many states India has. इंडिया में कितने स्टेट्स है? What are they? What are the numbers and names of states? हम अब names of states देखेंगे। There are 29 states in India. How many? 29. इंडिया में कितने states है? 29 states. The state and their capitals are as follows. Now, as you can look in the book, there are the names of the states and the capital also. यहाँ पर स्टेट्स के नेम्स भी हैं और वो स्टेट के कौन कौन से कैपिटल्स हैं उन कैपिटल्स के भी नेम हैं। सो कम वी विल सी द नेम्स एंड कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स। फर्स्ट आंध्र प्रदेश। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? विजयवाड़ा। सेकंड इज अरुणाचल प्रदेश। द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज इटानगढ़। आसाम कैपिटल इज दिसपुर। स्टेट बिहार कैपिटल इज पटना। स्टेट छत्तीसगढ़ कैपिटल इज रायपुर। स्टेट गोवा कैपिटल इज पांजी। स्टेट गुजरात कैपिटल इज गांधीनगर। स्टेट हरियाणा कैपिटल इज चंडीगढ़। स्टेट हिमाचल प्रदेश कैपिटल इज शिमला। स्टेट जम्मू एंड कश्मीर इट्स कैपिटल इज श्रीनगर। झारखंड कैपिटल इज रांची। कर्नाटका इट्स कैपिटल इज बेंगलुरु। स्टेट केरला इट्स कैपिटल इज त्रिवुनांतपुरम। स्टेट मध्य प्रदेश इट्स कैपिटल इज भोपाल। स्टेट महाराष्ट्र इट्स कैपिटल इज मुंबई। नाउ वी विल सी स्टेट मणिपुर इट्स कैपिटल इज इम्फाल। IMPHAL इम्फाल। स्टेट मेघालय इट्स कैपिटल इज शिलांग। स्टेट मिजोरम इट्स कैपिटल इज ऐजवल। स्टेट नागालैंड इट्स कैपिटल इज कोहिमा। स्टेट ओडिशा कैपिटल इज भुवनेश्वर। स्टेट पंजाब कैपिटल इज चंडीगढ़। स्टेट राजस्थान कैपिटल इज जयपुर। स्टेट सिक्किम कैपिटल इज गैंगटॉक। स्टेट तमिलनाडु कैपिटल इज चेन्नई। स्टेट त्रिपुरा कैपिटल इज अगरतला। स्टेट उत्तराखंड कैपिटल इज देहरादून।
उत्तर प्रदेश, कैपिटल इज लखनऊ. वेस्ट बंगाल, कोलकाता. तेलंगाना, हैदराबाद. सो हियर वर द स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स. ये इंडिया के स्टेट्स थे और उन स्टेट्स के कैपिटल्स थे. अंडरस्टूड? And learn this. I may ask this also in your oral exam. What is the capital of Andhra Pradesh? Or what is the capital of Punjab? I can ask this capitals also. Now we will see Union Territories of India. अभी हमने state capital देख लिया ना. अब हम देखेंगे Union Territories of India. What are the Union Territories and which are the names? There are some parts of India which are directly run by the सेंट्रल गवर्नमेंट. दे आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज. इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं जो डायरेक्टली कौन रन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. उसको क्या हम बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्ट्स को रन करता है, यूनियन टेरिटरीज. अंडरस्टूड? नाउ वी विल सी व्हाट आर द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स. अब हम देखेंगे कि यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं और उनके कैपिटल्स कौन कौन से हैं. First is Andaman and Nicobar Island. The capital of this is Port Blair. Next is Chandigarh. Its capital is Chandigarh. Its union territories. Confuse मत हो जाना, ये union territories है. दादरा and नागर हवेली. Its capital is Sivalasa. Daman and Diu. Its capital is Daman. Lakshadweep Island, Kavaratri. National capitals territory of Delhi, New Delhi. Pondicherry, its capital is Pondicherry. So here are the union territories and their capitals. Let's move ahead. The central government disputes a lieutenant governor to head of the people of each union territories. Now what central government has done? Central government ने क्या कर दिया? Central government ने dispute कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया lieutenant governor को. कौन है ये lieutenant governor? Head of the people of each union territories. जो union territories के हमने names देखेंगे ना, उनके head है, उनके लोगों के head है. Understood? The people living in different states and union territories of India speak different languages, wear different clothes, and have varied customs and traditions. Yet all are proud to be Indians. Every Indian loves his or her motherland, India. The offices of all these ministers and leaders are in New Delhi. As we know that ऑल ऑफ अस लव आवर मदरलैंड. जैसे कि आप सबको पता है, सबको अपनी अपनी मदरलैंड यानी कि मातृभूमि बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है. वी लव आवर मदरलैंड. हमको अपनी मातृभूमि से लव होता है. वी रिस्पेक्ट ऑल्सो. हम हमारी मातृभूमि को रिस्पेक्ट भी करते हैं. पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. अलग अलग स्टेट्स में रहने वाले, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग लोग रहने वाले अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं. दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टम ट्रेडिशंस ऑल्सो. वो अलग अलग टाइप के कस्टम्स ट्रेडिशंस फॉलो करता है. उनका रिलीजन अलग होता है, उनके बात करने का तरीका अलग होता है, उनके अलग लैंग्वेज होते हैं, है ना. बट वी आर प्राउड टू बी इंडियन. हमें इंडियन होने पे बहुत प्राउड है, गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं. एवरी इंडियन लव हिज मदरलैंड. हर हिंदुस्तानी को अपनी मातृभूमि बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है. वी लव आवर मदरलैंड एंड वी रिस्पेक्ट ऑल्सो. द ऑफिसर्स ऑफ ऑल दिस मिनिस्टर्स एंड लीडर्स आर इन न्यू दिल्ली. सारे जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स पोस्ट पे जो अपॉइंट होते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं? न्यू दिल्ली में रहते हैं. अंडरस्टूड? So my dear students, here we end our today's lesson. It's the time to take leave. I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy, be happy. See you soon. Bye.